Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you are doing fine and I hope you are studying well at home, plus you are taking care of yourself as well. So today I am here to give you a lecture. It's 15 July, today is Wednesday and the subject is SST, that means Social Studies our subject, and it's for the class 4. So our topic today is going to be our second lecture on SST. So your unit would be lesson number 2, right? Open your books at your social study 4th edition book. Open at page number 8. Open page number 8 of your SST books. Okay, when you have opened it, let's talk about our topic. Today, as you see on your page number 8, our topic is our country. That means our unit name is our country. It is on page number 8. Okay, our country, second lesson, page number 8. So first, let's talk about our country. Our country is beautiful. It has a variety of natural features. For example, we have different kind of features in this Pakistan. For example, we have a very fertile land. Okay, we have the 7th most popular, world highest mountains in our country. And what else? We have a snowy peaks, we have a glaciers, we have a fertile land, we have a dry desert, plus we have a desert, and we have different kind of valleys and steep and rocky kind of stuff. So in cutting it short, we have every kind of feature, every kind of land features in the Pakistan. It has, obviously it has a coastal area as well. Coastal area means it contains sea, it contains beaches. So as you see, in Karachi you have a beach over there, right? As you can go to the other, there are other coastline areas we talk about when we are going to talk about our different provinces, and I'll let you know how many beaches we have in this country. So our our country is the most beautiful country in this world. So let's talk about its location. What is the location of our country? Location means where it is located exactly. You have a certain idea that we lie in the continent of Asia. Okay? There are 7 continents in this world, and we lie in the continent of Asia, which is one of those 7 continents. So our location is in Asia. So in what particular area we lie? We lie in the southern part of Asia. So if you look at this, we lie in the southern part of Asia. Southern part means that we live in that particular direction. So how many kilometers we have? What kind of land we have? We have 7,96,095 square kilometers in the Pakistan. So that means our land is compiled of 7,96,095 square kilometers. And we have the neighbor also. So what are the main neighbors? We have 4 neighbors basically. First is China. Then there is India, Afghanistan and Iran. Neighbors mean we share our border with these countries. We share our border of our Pakistan in different areas with these countries. China, India, Afghanistan and Iran. These 4 are our basic neighbors, which are, we are sharing our borders with them. You have an idea that India border, Wagah border, which you see in the Lahore, right? So these 4 countries, we are sharing our borders with them, so they are our basic neighbors. Now I will tell you in which direction these countries lie. So first, I am good, Beta. How are you?
border with Iran in west. ईरान के साथ हम बॉर्डर कहाँ पे शेयर करते हैं? इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है. वी हैव 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सो एग्जैक्टली लाइक दैट वी आर शेयरिंग आवर बॉर्डर्स विद देम. फॉर एग्जांपल ईरान के साथ वी आर शेयरिंग आवर बॉर्डर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट. ईरान हमारे मुल्क के किस हिस्से में वाक़ है? वेस्ट की तरफ वी आर शेयरिंग आवर बॉर्डर्स एंड इट्स प्रेजेंट इन वेस्ट. एंड सेकंड इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ वी आर शेयरिंग आवर बॉर्डर इन north. We are sharing our border in northwest with Afghanistan. Afghanistan, where is Afghanistan present in the, we share our border in the northwest. ठीक है. नॉर्थ वेस्ट में जो है वो पाकिस्तान की कौन सा मुल्क वाक़ है? our neighbor country Afghanistan. Then there comes India. India is present in the east. Okay, India, we share border with India in the east direction. So India is basically present in the east direction, and then there comes China, and we share our borders with China in northeast. ठीक है. We share our borders with China in northeast. First हमारे पास we share border with Iran, then Afghanistan, then India, then China. India कहाँ पर है? ईस्ट में. China कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में. ईरान कहाँ पर है? वेस्ट में. और अफगानिस्तान किधर है? नॉर्थ में जो है हमारे पास वाक़ है. So from southern tip of the country is the northern eastern tip. Pakistan covers the distance of 1800 kilometers. If you look at the map, if you look at this book, you have seen that Pakistan, that is in purple color. ये जो कंट्री दिखाया गया पर्पल कलर, दैट इज पाकिस्तान. उसके ऊपर लिखा हुआ है. इफ यू लुक एट द पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आप ये मैप देख रहे हो, ठीक है. सो हियर कम्स पाकिस्तान. आई एम गुड बेटा एंड वालेकुम अस्सलाम. बट फर्स्ट पे अटेंशन टू योर लेसन. पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान, if you look at this map, then we are bigger than many countries and we are smaller than many countries. That means कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो एशिया के अंदर प्रेजेंट है, but they are more larger than us in comparative of area. And बहुत सारे ऐसे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं. If you look at the map of Nepal, आप नेपाल में देखते हो तो that is जो है वो एरिया में हमारे से क्या है? छोटा है. ठीक है. It is smaller than us. And if you look at the Iran, that is bigger than us. If you look at the India, that is almost the double of the Pakistan. So that means that we are larger than many countries as well as we are smaller than many of them as well. ठीक है. If you look at in the world map, so बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो हमसे बड़े हैं और बहुत सारे क्या हैं? हमसे छोटे. So after the map, there comes, we have different kind of countries which are near to us, which are really near to us. First हमारे पास क्या है? जॉर्डन. ठीक है. Then Palestine, Georgia, and then Azerbaijan, then Turkmenistan. All these countries are in our neighboring countries. These are the neighboring countries. That means that they are most closer to our country, Pakistan. If we look at the world map, so the population of Pakistan is around 207 million. Now you have to move on the page number 9. Okay, I am talking about the first paragraph, page number 9. Page number 9 में क्या है? Total population of Pakistan is 207 million. That means 207 million जो है वो total इस मुल्क की क्या है? आबादी है. ठीक है. Population का मतलब होता है आबादी. इस मुल्क की आबादी कितनी है? 207 million. And the population of population diverse है. Diverse क्या? मुख्तलिफ है एक दूसरे से. In what terms? We all are human beings. We all are same, but we are not same in terms of culture, in terms of our inheritance. तो हमारी क्या है? Language different है. We have different habits. We have different customs, and we have different style of clothing. And in Pakistan, all these things happens. Why? Because we have different kind of languages in our different provinces. ठीक है. मुख्तलिफ किस्म की जुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहने जाते हैं. Then हमारी जो है वो आदात वो मुख्तलिफ है, and our habits are different according to the environment of our that particular location. So the population of Pakistan growth is
ग्रोइंग रैपिडली। पाकिस्तान की आबादी जो है वो दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज डेथ रेट इन द पाकिस्तान इज वेरी लो। पाकिस्तान में लोगों की उम्र जो है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। उसकी एक तो ये है रीजन, हमारी जो है वो पॉपुलेशन बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू द टोटल एरिया। हमारे पास टोटल एरिया कम है बट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। व्हाई? फर्स्ट क्या है हमारे पास इशू? फर्स्ट इशू हमारा ये है कि हमारे यहाँ फैमिलीज बहुत बड़ी है, ठीक है, एक एक फैमिली में 9-9, 10-10 जो है वो बच्चे हैं। तो सेम एज इट इज लोगों की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड देयर इज वन अदर फैक्टर आल्सो, there are many Pakistani who migrate from Pakistan to different other countries. वो किस सूरत में हो सकता है? in terms of their earnings, वो कमाने के लिए वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो भाई जाके सेटल हो जाते हैं, उन्हें लाइफ वहाँ की पसंद होती है। and there are many others as well। और उसके बाद क्या है, there are every year जो है वो different किस्म के जो है वो लोग जो है वो वहाँ से पाकिस्तान में भी जो है वो मूव करते हैं। Bebe, I'll tell you one thing that first I have heard you that you are saying Assalamu alaikum. I have answered you as well. Please focus on your lecture first. Then we have a couple of minutes. उनमें हम जो है वो आपसे क्वेश्चन आंसर भी आप मुझसे कर सकते हैं and I'll talk to you as well. ठीक है, तो people of Pakistan follow different faiths, but the majority of the population क्या है हमारे यहाँ Muslims है, ठीक है। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था इन जस्ट टू अचीव अ डिफरेंट जो है लोकेशन, इसको कहते हैं पाकिस्तान जो था। एंड देयर इज आवर फ्लैग इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट फेथ। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस पोर्शन दैट इज अ ग्रीन वन, इसमें क्या है, इससे हमें बताया जाता है दैट ग्रीन पोर्शन रिप्रेजेंट पाकिस्तानी फ्लैग एंड माइनॉरिटीज इंक्लूड। इसमें क्या है कि दैट मोस्ट ऑफ द green flag shows that most of the population is Muslim। क्या है ये शो क्या करता है? most of the population is Muslim, but the white portion shows that we have different other faiths as well। for example Parsis है, Sikh है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो Christian है, Hindu है, ठीक है। इस तरह के different जो है वो communities are also present in our country। So if you look at our national flag, the national flag की अगर आप ऊपर देखते हो तो it shows that we have a different kind of phase are living over there। So now we are moving towards the landscape of Pakistan। Landscape means कि हमारा पाकिस्तान का जो एरिया है ये सारी चीजें जो है वो किस चीज के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करती है। Central part of our country has a wide place, ठीक है। वी हैव वाइड प्लेस, दैट मींस कि हमारे पास मैदानी इलाका बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मैदानी इलाका क्या है? दैट इज द मोस्ट फर्टाइल वन। क्यों? क्योंकि वी हैव सराउंडेड विद 5 डिफरेंट हमारे पास क्या है? वी हैव 5 डिफरेंट रिवर्स इन आवर कंट्री। हमारे पास क्या है? झेलम है, चनाब है, रावी, सतलुज एंड द मेन रिवर इज इंडस। बाकी क्या है? इसके ट्रिब्यूटरीज है और इंडस हमारे पास क्या है? मेन रिवर है। इंडस कहते हैं दरियाए सिंध को, ठीक है। दरियाए सिंध जो है दैट इज इंडस रिवर। इंडस रिवर हमारे पास जो है वो मेन है और बाकी सारे, और ये कहां से निकलता है? दैट कम्स फ्रॉम द हिमालयाज। सो यू हैव अ सर्टेन आइडिया दैट हिमालयाज जो है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि रेंज कहां से स्टार्ट होती है उनकी? वो इंडिया में भी है और वो पाकिस्तान में भी जो है वो समहाउ है वो करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में क्या है कि हमारी निकलता कहाँ से? इंडस रिवर हिमालय से निकलता है, जो कि हमारे पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज्यादा सैराब करता है। सो मेनली द रिवर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर द पाकिस्तान एग्रीकल्चर लैंड दैट इज इंडस रिवर। बाकी जो रिवर है इसके क्या है? ट्रिब्यूटरीज है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जगहों से जो है निकलते हैं। वी हैव देयर सर्टेन पॉइंट जिसको हम कहते हैं पंजन, ठीक है। वो क्या करते हैं? पंजन क्या करते हैं? पंजन जो है वो एक पॉइंट है जहाँ पर 5 दरिया जो है वो मिलते हैं। सो रिवर इंडस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो हिमालय से स्टार्ट होता है, हिमालय से निकलता है, हिमालय के पहाड़ से निकलता है एंड देन जो है वो हमें ज्वाइन कहाँ करता है? मिठनकोट बाय झेलम। मिठनकोट जो है वो एक एरिया का नाम है जो कि झेलम में जो है वो वाक़ है। तो वहाँ पर जो है वो हमें हमारे साथ जो मिल जाता है। वहाँ पर चनाब, रावी और सतलुज जो है वो एक जगह फ्लो करते हैं और वो सब मिलके क्या बनाते हैं? दरियाए पंजन, जिसको हम कहते हैं। पंजन एक पॉइंट है जिसको कहते हैं, और वो जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ आवर प्लेन्स। दैट मीन्स कि वहाँ पर 5 के 5 दरिया जो है मिल रहे हैं, तो वहाँ की जो लैंड होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी? फर्टाइल होगी।
पंजाब का एरिया जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. सो इन वेस्ट देयर आर माउंटेन्स बट देयर आर नॉट एज हाई एज देयर नॉर्थ. वेस्ट के अंदर में भी वी हैव माउंटेन्स, ठीक है, लेकिन उतने ज्यादा हाई नहीं है जितने ज्यादा क्या कहते हैं आप उसको, जितने हमारे पास नॉर्थ में है. व्हाई? बिकॉज नॉर्थ में जो माउंटेन्स है दे आर कवर्ड विद यू नो स्नोई पीक्स. उनके पास स्नोई पीक्स है, दे हैव अ ग्लेशियर, दे हैव अ बबलिंग जो है वो फ्रेश स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, उसके बाद वाटरफॉल्स हैं. ये सारी चीजें कहाँ है? हमारे पास नॉर्थ में मौजूद है. वी डू हैव दीज थिंग्स इन डिफरेंट अदर यू नो प्रोविंसेस एज वेल, बट उनमें क्या है कि वो ना तो पहाड़ उतने ज्यादा ऊंचे हैं और ना ही जो है वो उतने ज्यादा, यानी कि आप उसमें कह लो कि एक तरफ जो है वो हमारे पास वेट क्लाइमेट आ जाता है और एक तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, ड्राई डेजर्ट जो है वो क्लाइमेट आ जाता है. एंड देयर इज अ कोस्टल लाइन जिसको हम कहते हैं. हमारी कोस्टल लाइन में कौन सी जो है वो मेन जो है वो समंदर जो है वो वाक़, दैट इज कॉल्ड अरेबियन सी. अरेबियन सी जो कि आपको नजर आता है कराची में, ठीक है. कराची इज द मेन प्लेस जहां पर आपको जो है कोस्टल एरिया जो देखते हो. सेकंड वन इज गवादर, ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट पोर्ट है, ठीक है, जो बलोचिस्तान में वाक़ है. बलोचिस्तान आल्सो हैज अ बलोचिस्तान एंड सिंध, दीज टू प्रोविंसेस हैव द कोस्टल लाइन, ठीक है. बलोचिस्तान में कोस्टल लाइन है हमारे पास एंड सिंध में भी है. सिंध में कहां पर है? यू सी जो है वो आपको जो अरेबियन सी नजर आता है, सेम एज जो अरेबियन सी आपको कहां नजर आएगा? बलोचिस्तान में भी जो है वो आपको नजर आएगा. और जो इंडस रिवर है वो हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द फार्मिंग. अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ऑन पेज नंबर 10. अगर आप पेज नंबर 10 पे देखें, ठीक है, सो फर्स्ट है हमारा लिविंग एंड वर्किंग. ये आपके पास जो है दैट इज कॉल्ड मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है. अगर आप ये देखते हो देयर आर प्रोविंसेस, ठीक है, ये कोयटा दिखाया हुआ है, कराची दिखाया हुआ है, हैदराबाद है, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद. ऑल दीज आर द वेरी फेमस जो है वो एरियाज हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि कॉमनली हर पाकिस्तानी को जो है वो पता है. देन हमारे पास क्या है? हमारे पास गिलगित है, सकर्दू है, ठीक है, दैट कम्स इन गिलगित बल्तिस्तान जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया आता है. फिर हमारे पास क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी कि इसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास क्या है? आजाद जम्मू कश्मीर है और कुछ हमारे पास क्या है? दूसरा जम्मू एंड कश्मीर. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन समहाउ जो है वो अभी इंडिया की जो है वो पास है. हाफ हिस्सा हमारे पास है, हाफ इज विद द इंडिया. ओके बेटा, फर्स्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ईरान है, ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान है, इधर इंडिया है, देयर इज चाइना, ठीक है. देन इफ यू लुक एट दिस मैप तो आपको क्या है? ये हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, ये सारे इलाके वो इलाके जो कॉमनली हर पाकिस्तानी को क्या है पता है. यू डू हैव एन आइडिया, मतलब आपके पेरेंट्स ने देखे हुए होंगे या फिर आप लोगों को बहुत सारे लोग आप लोगों में से वहाँ ट्रैवल करते होंगे, तो ये कॉमनली नोन जो है वो एरियाज है, इसलिए इसको पाकिस्तान के मैप में जो दिखाया गया है. अब पाकिस्तान के मैप में जो स्केल दिया गया है 1 किलोमीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो उसको स्केल जो है वो इसी तरीके से इसके ऊपर दिखाया गया है. और सेकेंडली ये है कि इसमें हम क्या बात करेंगे कि हाउ वी आर लिविंग इज डिफरेंट एंड वर्किंग स्टाइल इज डिफरेंट. देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में क्या है? हमारे पास लैंडस्केप क्या है? मेनली प्लेन्स है. वी डू हैव माउंटेन, डेजर्ट भी है हमारे पास, वैलीज भी है हमारे पास, कोस्टल लाइन भी है जिसको हम अरेबियन सी बोलते हैं. बट द सेम एज इट इज हमारे पास जो है लिविंग एंड वर्किंग जो है वो डिपेंड किस पे करती है? हमारी प्लेस पे. दैट मींस आवर लिविंग स्टाइल इज मोस्टली एग्रीकल्चर बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ रहती है? ओके बेटा, आई डू इट अगेन. लिविंग एंड वर्किंग हमारे पाकिस्तान में क्या है कि हमारे पास प्लेन्स सबसे ज्यादा है, ठीक है, मैदानी इलाका ज्यादा है. देन हमारे पास क्या है? माउंटेन भी आ जाते हैं, डेजर्ट भी है हमारे पास, वैलीज भी है, और हमारे पास कोस्टल में क्या है? अरेबियन सी जो है वो आते हैं. अब हमारा जो है वो लिविंग स्टाइल किस पे डिपेंड करता है? बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ जो है प्लेस, तो हमारा मोस्टली जो है वो पाकिस्तान में ज्यादातर पॉपुलेशन वो कहाँ रहती है? विलेजेस के अंदर रहती है, ठीक है, गांव के अंदर रहती है. सो व्हाट दे डू इज उनका जो है मेनली ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. तो हमारा जो लिविंग स्टाइल का दैट मेनली बेसिकली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर लैंड्स. और सेकंड वो क्या है? देयर आर डिफरेंट यू नो प्लेसेस जहां पर डिफरेंट विलेजेस में जो है वो औरतें और मुख्तलिफ लोग जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स का क्या मतलब है? हैंडीक्राफ्ट्स में यानी कि हर डेकोरेशन की चीज भी आ जाती है, हैंडीक्राफ्ट में हर वो चीज आ जाती है जो हम हाथ से बनाते हैं. सो इफ यू लुक एट द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस ऑफ द पाकिस्तान देन यू विल कम टू नो कि हमारे पास ज्यादातर लोग जो है वो हाथ से चीजें बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो मुख्तलिफ डेकोरेशन की
सारी क्या आ जाएगी, ये सब हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो है वो आ जाएगी। तो हमारी Since we know where the best agricultural land is, we also know where the most people live. हमें पता है कि एग्रीकल्चर लैंड में ज़्यादातर विलेज में, सो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गांव के अंदर रहते हैं, और वो ज़्यादातर लोकली प्रोड्यूस मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी वो मटेरियल वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो वो लोग आमतौर पर अपने घर में छोटी छोटी फैक्ट्रियों में जो है वो बना लेते हैं। So we do have a schools, we do have an urban area. Urban area का आपको पता है, urban area कहते हैं सिटी, like even it's a small or a big, लेकिन जो इसमें आता है अर्बन एरिया में आता है। तो हमारे पास जो अर्बन एरिया वो क्या है, वो हमारे पास है, यानी कि जिसमें डिफरेंट सिटीज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। वहाँ बस बेटे अगर आप जो है वो पेज नंबर 10, ठीक है, अब आई एम रीडिंग दिस लाइन, ठीक है, 5th लाइन, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल हॉस्पिटल्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रोड्स है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन द विलेजेस। सम ऑफ द विलेजेस इन द सिंध एंड पंजाब हैव ग्रोन विद लार्ज टाउन्स एंड सिटीज। बहुत सारे विलेजेस जो है वो सिंध के अंदर वो क्या है, वो शहर बन चुके हैं। सेम एज इट इज इफ यू लुक एट आवर यू नो, अगर आप झंग के ऊपर भी देखो तो झंग में क्या था, ये पहले काइंड ऑफ विलेज, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या इसको कन्वर्ट कर दिया गया सिटी के अंदर। सो यहाँ पर डिफरेंट टॉल बिल्डिंग्स भी होती हैं, देयर आर डिफरेंट फैक्ट्रीज वर्किंग एज वेल, ठीक है, ऑफिसेज भी हैं, घर भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, स्कूल भी हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्राउडेड एरियाज एज वेल। सो हमारी जो है वो पॉपुलेशन की जो है वो क्या होगी, हमारी पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए हमारी जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वो जो है चेंज हो गए। बेटे जो आपने लास्ट लेसन पढ़ा था उसके नोट्स आपको फॉरवर्ड थ्रू व्हाट्सएप हो जाएंगे, ठीक है। इफ यू हैवंट गेट एनी ऑफ देम, अगर आपको अभी तक वो नोट्स नहीं मिले तो यू कैन टेक्स्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो provinces and administrative area of Pakistan. बेटे मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको जिस चीज़ के नोट्स नहीं मिले हैं, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है स्कूल का, आप ऐसा करें उस नंबर पे मैम को मैसेज कर दें, ठीक है, शी विल सेंड यू आवर नोट्स। जिस भी आपको चैप्टर के या जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिले, आप उनको टेक्स्ट कर दें कि मैम मुझे ये नहीं मिले, शी विल सेंड इट टू यू इमीडिएटली, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी। अभी आप क्या करो, अभी आप अपने लेक्चर पे फोकस करो। नोट्स के लिए आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़ तो लो जो आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। Provinces and administrative area of Pakistan. The federal capital of Pakistan क्या है, इस्लामाबाद है। हमारा जो कैपिटल है पाकिस्तान का वो क्या है, इस्लामाबाद है। फेडरल क्यों कहा जाता है, ठीक है, यानी कि हमारी तमाम सूबों का जो है वो अलग अलग भी कैपिटल है, बट जो पूरे मुल्क का कैपिटल है वो कौन सा है, इस्लामाबाद, ठीक है। सो यू हैव बीन इन इस्लामाबाद, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने जो है वो ऑलरेडी देखा होगा। इन एडिशन टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल जो है वो एरिया जिसको हम कहते हैं फाटा। फाटा ऑल्सो इज यू नो लाइक इस्लामाबाद के जो बिल्कुल पास ही जो है वो वाकई इसमें डिफरेंट जो है वो आते हैं। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस, हमारे पास क्या है, मेनली 4 प्रोविंसेस है। फर्स्ट क्या है, पंजाब है, देन सिंध है, देन बलोचिस्तान है, देन खैबर पख्तूनख्वा है। हमारे पास कितने 4 मुख्तलिफ सूबे हैं, ठीक है, और हमारा फेडरल कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है, और हर इस्लामाबाद के बाद हर सूबे का अलग से भी जो है वो कैपिटल हमने जो है वो बनाया है। सो इफ वी टॉक अबाउट ऑन दिस यू नो पेज नंबर 11 पे अगर आप देखें, ठीक है, पेज नंबर 11, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द फेमस प्लेसेस इन पाकिस्तान, अगर आप मैप देखो, ये आपकी बुक के ऊपर है ऑन पेज नंबर 11। अब इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है सईदपुर विलेज विच इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन इस्लामाबाद। के बाद क्या लोक विरसा म्यूजियम है, ठीक है, पाकिस्तान मोनूमेंट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, देन वी हैव अ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, ठीक है, दामन को है हमारे पास, वी हैव रमजान एज वेल इन इस्लामाबाद। सो व्हेनेवर यू गो टू इस्लामाबाद, तो उससे ये क्या है, आपके पास एक बुक पे यानी कि ये बुक में मैप है जिससे आपको पता चलेगा कि इस्लामाबाद में कौन सी जगह ऐसी हैं जो देखने के काबिल है, जहाँ पर जाके आपको कुछ सीखने को मिलेगा या वो चीज़ें आपको खूबसूरत लगेंगी, ठीक है। तो यू कैन फॉलो दिस मैप व्हेनेवर यू गो टू इस्लामाबाद, ठीक है। आप इस्लामाबाद विजिट करने जाते हो तो आप इन प्लेसेस को जो कि इस्लामाबाद की पूरी यानी कि
कंट्री में फेमस है वो आप चीजें जो है वो विजिट कर सकते हो। ये सारी यहाँ पर मेंशन है। इट्स ऑलमोस्ट 16 प्लेसेस। ठीक है, आप जब भी इस्लामाबाद जाए इन जगहों को जरूर देखिएगा, सो आपको पता भी चलेगा कि इस्लामाबाद में कौन सी जगह जो है वो सबसे फेमस वन है। नाउ विल टॉक अबाउट पंजाब। अब पंजाब क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। पंजाब हमारे पास क्या है, पंजाब वो प्रोविंस है जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आबादी जो है वो रहती है। ठीक है, और इसमें क्या है, हम इसको कहते हैं लैंड ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। लैंड ऑफ रिवर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे पास इंडस, सरसों, रावी, चनाब, झेलम, ये ऑलमोस्ट जो है वो दरिया जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो मिलते हैं। ये हमारी जमीन को जो है, पंजाब को जो है सैराब करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि पंजाब की जमीन जो है ज्यादा सैराब है और ज्यादा जो है वो उसमें आप कह लें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप्स जो है वो हम उगा सकते हैं। सो एग्रीकल्चर जो है वो मेन कंपोनेंट है पंजाब का, जिसके जरिए से जो है वो लोग कमाते हैं, यानी थ्रू फार्मिंग जो है वो मुख्तलिफ जो है लोग जो है वो अपनी अर्निंग्स करें, अपनी चीजों को जो है वो ठीक करें। अब हमारी पंजाब इकोनॉमी जो है हमारी वो मोस्टली जो है पंजाब की क्रॉप्स के ऊपर वो करती है। आपको पता है कि हम बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट मुल्क में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, हम बाहर भी बेचते हैं, तो वो सारी क्या होंगी, उनमें जो है मोस्ट फेमस जो है क्रॉप्स जो कि पाकिस्तान के अंदर है वो पंजाब के अंदर वो क्या है, हमारे पास वीट, राइस, ठीक है, उसके बाद जो है वो मैंगोज, ऑरेंजेस, ये बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो क्या किए जाते हैं, काश्त किए जाते हैं। सो आर बेसिकली अर्निंग जो है वो आप जो है वो काश्त करते हो इनके अंदर। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू सरगोदा, ठीक है, तो वो फेमस किसके लिए, ज्यादा ऑरेंजेस के लिए फेमस है। ठीक है, देयर आर मोस्ट ऑफ द ऑरेंज जो आप कहते हो बाग है ऑरेंज के, वो वहां पर पाए जाते हैं। इफ यू गो टू मुल्तान, दैट इज फेमस फॉर द मैंगो। ठीक है, वो मैंगोज वहां पर बहुत बड़े स्केल पे जो है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। सेम एज इट इज आप डिफरेंट अपने गांव में, अपने फादर के जो गांव में जाए या किसी से डिफरेंट गांव में अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो यू विल सी देयर आर डिफरेंट क्रॉप्स। जो आपको मेनली क्रॉप्स नजर आएंगी वो क्या होगी, वीट होगी, फिर उसके बाद क्या होगी आपके पास शुगर केन होगी या फिर राइस होगी। सो दीज आर द मेनली कल्टीवेटेड जो क्रॉप्स है। इफ यू लुक एट द, ये आपको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे आएगी। और इफ यू लुक एट द ट्रीज, तो यहाँ पर नॉर्मली ट्रीज जो है वो यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस कहते हैं सफेदे को। ठीक है, इफ यू लुक एट योर स्कूल बिल्डिंग के अंदर भी आपके काफी ज्यादा सफेदे के दरख्त होंगे। ठीक है, शीशम के दरख्त जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। एंड मेनी अदर ट्रीज कॉमनली, जो बहुत सारे जो है वो कॉमन ट्रीज जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। सो वी हैव छांगा मांगा, ठीक है, छांगा मांगा जंगल का नाम है, जो कि हमने खुद से जो है वो लगाया। फिर देयर इज अ मैन-मेड फॉरेस्ट आल्सो, देन देयर इज लाल सुनहरा फॉरेस्ट आल्सो। ये सारे फॉरेस्ट हैं जो पाकिस्तान में यानी कि पंजाब के सूबे के अंदर जो है वो वाक़ है। तो अगर आप जो है पंजाब के मोस्टली इंडस्ट्रियल जो है वो, अब पंजाब के बनता जा रहा है, बहुत सारी एरियाज जो है इंडस्ट्रियलाइज भी हो गए और अर्बनाइज हो गए। अब इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, इफ यू मूव फ्रॉम फैसलाबाद से अगर आप जो है फर्दर मूव करो लाहौर वाली साइड पे, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई है। सेम एज इट इज जो लाहौर है वो टोटली कॉस्मोपॉलिटन जो है वो सिटी बन गया। कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लो कि टोटली अर्बन जो है वो उसका जो है वो सही पे कहीं पे भी आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगे, बट इट्स ऑल मोस्टली ग्रोइंग ओवर एंड ओवर अगेन, और ये बहुत ज्यादा वास्ट जो है वो एरिया को कवर करता है। अब नाउ हम क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट कि हमारे पास लाहौर में व्हाट आर द मोस्ट फेमस स्पॉट्स व्हिच वी नीड टू विजिट। ठीक है, हमारे पास जो लाहौर में जो मोस्ट फेमस जो है वो प्लेसेस है वो कौन कौन सी है हमारे पास। वी हैव बादशाही मॉस्क, ठीक है, वी हैव लाहौर फोर्ट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देयर आर पीपल ऑफ द पाकिस्तान हु पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू द सेंट्स। हमारे यहाँ सेंट्स को बहुत ज्यादा यानी सूफियों को बहुत ज्यादा माना जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है जो मोस्ट फेमस है वो कौन से हैं, हक बाहू है, ठीक है, हमारे पास दाता गंज बख्श है, वारिस शाह है, ठीक है, ख्वाजा गुलाम फरीद है, और इस तरह से डिफरेंट जो है वो सेंट्स हैं जिनकी दरबार पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। दे कम ओवर देयर एंड दे पे देयर ट्रिब्यूट ओवर देयर। तो अगर आप जो इस पेज पे पेज नंबर 12 इफ यू लुक एट दिस मैप तो आपको नजर आएगा सारी लाहौर की फेमस स्पॉट्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। और पंजाब में जो है वो मोस्टली लोग जो क्या पहनना पसंद करते हैं, द मोस्ट ट्रेडिशनल इज, यहाँ पर हम खुस्सा जो है वो खुस्सा, अहमद, कुर्ता और पगड़ी जो है दिस इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन मेल्स। और उसके बाद जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा जो है वो
फेमस फूड है, फेमस फूड जो पंजाब की है वो क्या है, मकई की रोटी है, सरसों का साग है, ठीक है। और फोक डांसेस जो है वो डिफरेंट पंजाब के हैं, जिसमें भंगड़ा है, लुटी है। इसी वजह से जब भी आपके स्कूल्स के अंदर डिफरेंट ट्रेडिशंस को दिखाना होता है तो वी गो फॉर द भंगड़ा, लुटी, ठीक है। और उसमें उसी तरह का जो है वो सेटअप जो है वो दिखाया जाता है। देन वी मूव टुवर्ड्स द प्रोविंस सिंध। हमारे पास सिंध का प्रोविंस क्या है, कराची। पंजाब का प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस का कैपिटल लाहौर है। सिंध प्रोविंस का कैपिटल क्या है, वी हैव अ कराची ओवर है। अब कराची में क्या है, कराची जो है वो इट्स द लार्जेस्ट सिटी एंड पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह जो है वो दैट इज प्रेजेंट इन कराची, ठीक है। एंड मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द सिंध इज, ज्यादातर वहां पे बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी है, ठीक है। और वो इंडस प्लेन पे वाक़ है। और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, एंड देयर आर थर्ड डेजर्ट आल्सो। थर्ड डेजर्ट भी जो है हमारा सिंध में वाक़ है, जो कि मोस्टली जो है वो आपको वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी तक अर्बनाइज नहीं हुआ और उसके पास बहुत सारी जो है सहूलियात आपकी तरह जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये इंडस डेल्टा के अंदर वाक़ है, यानी कि जो है वो दरियाए सिंध के अंदर जो वाक़ है। द इंडस डेल्टा टू द साउथ ऑफ द कराची फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। इंडस डेल्टा क्या करेगा, यानी दरियाए सिंध वहां से बहकर कराची के समंदर के अंदर जो है वो मिल जाता है। सो देयर आर लिटिल बेस, हमारे पास सैंडी बीचेस भी है, वी हैव अरेबियन सी। हमारे पास अरेबियन सी होने की वजह से वहाँ कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन की वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो कह सकते हैं आप, वहाँ पे एक बंदरगाह भी है सबसे बड़ी कराची में, ठीक है। सेम एज इट जो है वो कोस्टल लाइन जहाँ जहाँ समंदर टच करेगा वहाँ पे मुख्तलिफ जो है बीचेस होंगी। और बीचेस किससे पे बनी हुई होती है, ज़्यादातर सैंड पे यानी रेत से बनी हुई होती हैं। और उसमें यानी कि जो है वो मैनग्रोव्स यानी कि जो है वो विच आर रिच इन मेरीन लाइफ, और वहाँ पर मैनग्रोव्स भी बनाए गए हैं। वो किससे, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरीन लाइफ यानी कि वो जहाँ पर बहुत सारे जानवर यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं वो मौजूद है। और वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर डिफरेंट रिजॉर्ट भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो बहुत सारी मेनली जो है वो वहाँ की जो फूड है वो कौन सी है, हमारे पास मोस्ट फेमस फूड ऑफ द कराची इज बिरयानी, एज यू ऑल नो, ठीक है। वहाँ पर क्या है, बिरयानी जो है वो कराची की सबसे फेमस है, ठीक है। और उसके वहाँ पर स्पोर्ट्स जो है वो क्या है, वहाँ पर मलाको स्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, झुमरो और जमालो जो है वो दिस इज द डांस, फोक डांस वहाँ की है। जैसे पंजाब का फोक डांस था लुडी और भंगड़ा, सेम एज इट इज सिंध का फोक डांस क्या है, झुमरो और जमालो जो है वहाँ का जो है फेमस डांस है। और वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो सिंध की जो पहचान है वो आपको कहाँ से होगी, सिंधी टोपी से और उनकी अजरक से, ठीक है। सो वो नॉर्मली जो है वो वहाँ पर भी इन सिंध वी हैव आल्सो शराइन्स। मोस्ट फेमस शराइन वहाँ का कौन सा है, लाल शहबाज कलंदर जो है वहाँ पे, ठीक है। एंड अब्दुल शाह गाजी जो है वो उनका शराइन जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। प्लस कराची इटसेल्फ हैज कायद-ए-आज़म का जो है वहाँ पर टॉम मौजूद है, ठीक है। कायद-ए-आज़म का बाजार है जो सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे पूरे यानी कि जो पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव गॉट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द कायद-ए-आज़म। सो ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, सिंध के अंदर। सो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ सिंध एट पेज नंबर 13 देन यू विल कम टू नो सारी जो सिंध की जो है फेमस एरियाज जो है वो फेमस जिनको आपको विजिट करना चाहिए, कौन सी कोस्टल लाइन्स हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, ये सब जो है वो आपको इस पे जो है वो नजर आ जाए। सो अगर आप जो है वो आफ्टर दैट वी हैव टू मोर प्रोविंसेस। बलोचिस्तान का कैपिटल क्या है, कोयटा, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल क्या है, पेशावर। तो बलोचिस्तान का जो है कैपिटल वो क्या हुआ, कोयटा। और इट हैज द लार्जेस्ट सिटी, इट्स एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट। ड्राई डेजर्ट का मतलब यानी खुश्क सहरा की तरह जो है वो वहाँ पर जो है वो होगा। इसमें क्या है, हमारे पास ज्यादातर जो है वो यहाँ पर जो है वो कोयटा के अंदर क्या कल्टीवेट किया जाता है, एप्रिकॉट, जो आप आड़ू बहुत शौक से खाते हो, ठीक है, वो कल्टीवेट किया जाता है। एप्पल्स किए जाते हैं, ग्रेप्स किए जाते हैं, चेरी, दे ऑल कम्स फ्रॉम द कोयटा, क्योंकि ये ठंडे इलाके में होती है तो ये सारी जो है वो कोयटा से आती है। तो उसके बाद जोनीपर, अल्पाइन और कॉनिफॉर्म फॉरेस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन कोयटा, यानी कि हमारे पास बलोचिस्तान में मोस्टली जो ट्रीज हैं वो कौन से होंगे, जोनीपर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी कि अल्पाइन ट्रीज होंगे, कॉनिफर ट्रीज होंगे, ये बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होंगे और इनकी लकड़ी को हम अपनी चीज़ों में जो है इस्तेमाल भी करते हैं। एंड देयर इज आल्सो न्यूली डेवलप्ड पोर्ट जिसको हम कहते हैं गवादर पोर्ट, ठीक है। वहाँ पर क्या है, डेवलप गवादर पोर्ट जो कि सिग्निफिकेंट पार्ट है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में, यानी कि चाइना पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, सी पैक, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन विल बी एज कंपेयर टू, जैसे हमारे पास सिंध में बहुत बड़ी जो है वो पोर्ट थी, अब हमारे पास नई पोर्ट जो बनने जा रही है दैट इज सी पैक।
विच इज प्रेजेंट इन बलोचिस्तान। वो कहाँ मौजूद है हमारे पास? बलोचिस्तान में मौजूद है। और बलोचिस्तान में सबसे फेमस जो जगह है वो क्या है? ज़ियारत है। ज़ियारत में क्या है? कायद आज़म रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर कायद आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात जो है वो गुजारे हैं। वो कहाँ पर मौजूद है? वो ज़ियारत में मौजूद है। उसके बाद पीपल जो है यहाँ पर बहुत सारी दे स्पीक डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। वहाँ की जो फेमस कुजीन है दैट इज सज्जी, ठीक है। और वहाँ पर जो है वो सिबी मेला जो होता है, लाइव स्टॉक फील्ड होता है, ठीक है। अब लाइव स्टॉक फील्ड का मतलब वहाँ पर बहुत सारे यानी कि जो जानवरों का जो है मवेशी मेला बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल गो ओवर देयर, ठीक है। और वहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है वहाँ जाते हैं सो दैट दे एंजॉय दैट प्लेस। और उसके बाद सिबी मेले में भी जाते हैं। उसके बाद यहाँ का जो फेमस फोक डांस है, जैसे यहाँ सिंध में हमारे पास जमालो डांस था, झूमरो डांस था, यहाँ पर हमारे पास लूडी और भंगड़ा था। यहाँ पर बलूचिस्तान में वी हैव लेवा चाप लेवा एंड झूमरो डांस आल्सो परफॉर्म इन द बलूचिस्तान। वहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो क्या खेली जाती है? चौक खेली जाती है, ठीक है। हॉर्स राइडिंग बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में फेमस है। पीपल लव टू हैव द हॉर्सेस। और वहाँ पर हॉर्स रेसिंग जो है वो सबसे ज्यादा की जाती है। एंड मैन वेयर लूज कमीज एंड बैगी शलवार। आपने कभी देखा होगा कि लोगों की लड़के वहाँ पर जो है शलवारें जो बहुत खुली खुली जो शलवारें पहनते हैं, ठीक है। एंड दे वेयर टर्बन्स, बैगी टर्बन्स आल्सो। एंड उनकी जो औरतें हैं वो क्या पहनती हैं? दे मोस्टली वेयर जो है वो डिफरेंट प्रिंटेड जो है वो अपनी फ्रॉक्स जो है वो पहनती है इन बलूचिस्तान। व्हेन वी मूव टुवर्ड्स खैबर पख्तूनख्वा, तो इसमें क्या है? थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा यानी कि आबादी के लिहाज से प्रोविंस है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? पेशावर आ जाता है इसका कैपिटल। सो कैपिटल हमारे पास क्या आ जाता है? पेशावर। और पेशावर से जैसे आपको पता है देयर आर मोस्टली पीपल ओवर देयर स्पीक पश्तो, ठीक है। देयर इज अ पश्तो वहां पर बोलते हैं। देन दे आल्सो स्पीक पर्शियन जिसको फारसी कहते हैं, फारसी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है। एंड देयर आर सम अदर लैंग्वेजेस आल्सो। उसमें जो है चित्राली भी है, हजारा भी है, ठीक है, हिंदी को भी है, कोहिस्तानी भी है। सो देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ द लैंग्वेजेस व्हिच आर स्पीकिंग इन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो जुबानें बोली जाती हैं। सो हमारे पास जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे ज्यादा फेमस एरिया दैट इज नारान का गान, ठीक है। आपको नारान का गान का पता है, मालम जब्बा का पता है, ठीक है। उसके बाद आपको शंदूर पास का पता है। देन देयर इज स्की रिजॉर्ट एट मालम जब्बा, जो कि स्की का मतलब स्कीइंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज अ स्पोर्ट। लेकिन वो सिर्फ कहाँ वाक़ है? खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पाकिस्तान के अंदर वाक़ है, जो कि मालम जब्बा के मुकाम पे वाक़ है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आफ्टर विंटर्स जो है वहां पर जाते हैं टू एंजॉय द स्पोर्ट स्की। और फिर इसके बाद क्या है? दिस इज द खैबर पख्तूनख्वा इज आल्सो फेमस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स के लिए बहुत फेमस है, प्रीशियस स्टोन्स के लिए, जिसमें हमारे पास मार्बल आ जाता है और भी बहुत सारे कीमती पत्थर जो है वो हमें खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं? फ्रूट्स है, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं? सेब आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एप्पल्स हैं, एप्रिकॉट है, देयर इज नट्स, ठीक है। नट्स और सीड्स वगैरह जो है वो हम नॉर्मली कहाँ से हासिल करते हैं? खुद खैबर पख्तूनख्वा। हमें बलूचिस्तान से भी वही चीज मिल रही है, हमें खैबर पख्तूनख्वा से भी वही ऑलमोस्ट चीजें जो है वो सेम मिल रही है, बिकॉज दे ऑल हैव माउंटेन्स, ठीक है। इन सब में क्या है? हमारे पास माउंटेन्स है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में मोस्टली जो माउंटेन्स है दे आर मोस्टली कवर्ड विद स्नो। और कोयटा में कुछ जो माउंटेन स्नोई है और कुछ जो है वहां पर दूसरे। और उसमें क्या है? एग्रीकल्चर लैंड भी हमारे पास है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम मेज। बेटे डायरी में आपके पास है, यू हैव टू डू द होमवर्क, ठीक है। आपको अपना होमवर्क करना है, सारा जितना भी आपका बुक पेज है, ठीक है। जो आपका इफ यू लुक एट द पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 पे जो वर्क पेज है, यू नीड टू सॉल्व देम। आपने क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन आंसर और वर्क पेज ऑफ लेसन नंबर 2। तो ये आपने सॉल्व करने हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो चपटी कबाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की सबसे फेमस कुजीन है। और वहाँ पर क्या बोला जाता है? यहाँ पर ख्वाजा काका साहेब जो प्रोविंस के सबसे ज्यादा फेमस सेंट है। सो सब प्रोविंसेस में देयर इज वन थिंग व्हिच इज मोस्ट कॉमन वन, कि यहाँ पर हर प्रोविंस में जो है डिफरेंट सेंट्स हैं जो कि अपनी सूफीज़म को जो है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा जो है ट्रिब्यूट दी जाती है। सो वी हैव डिफरेंट जो है वो हमारे पास शराइन्स हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और अपनी जो है वो अकीदत को जो है वो जाहिर करते हैं। सो ट्रेडिशनल हमारे पास जो है वो इनकी ट्रेडिशनल जो है वो क्लोथिंग जो हमारे पास क्या है? कपूल कैप है और पेशावरी चप्पल, विच इज द फेमस वन फॉर खैबर पख्तूनख्वा।
बेटे डायरी आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू योर वर्क पेज, ठीक है, विच इज ऑन योर पेज नंबर 16 एंड 17। 16 और 17 का वर्क पेज सॉल्व करना है, ठीक है। देन यू हैव अ क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चन आंसर आपको जो है वो सॉल्व करने हैं अपनी बुक्स के ऊपर और नोटबुक्स के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज योर डायरी। और आप जब देखोगे इफ यू लुक एट योर पेज नंबर 15, तो पेज नंबर 15 पे क्या है आपके पास डिफरेंट यानी कि जो है वो बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो डिफरेंट एरियाज हैं जो कि मोस्ट फेमस वन है। तो अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखेंगे तो आपको हर प्रोविंस की सबसे ज़्यादा फेमस स्पॉट्स का आपको कौन कौन से स्पॉट्स देखने के काबिल है, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और पाकिस्तान किन चीज़ों के लिए फेमस है, क्या लैंग्वेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर ऑन योर पेज नंबर लेसन नंबर 2 के अंदर आपको जो है वो मिल जाएंगी। सो टिल देन आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।